हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। चलिए आज हम लोग देखते हैं गेट केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और मुझे रिक्वेस्ट आया है, मैंने कमेंट में देखा कि कुछ बच्चे हैं जो हमारे साउथ इंडियन के हैं, वो हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं लेकिन लैंग्वेज के कारण नहीं देख पाते हैं। सो फॉर देम ऑल्सो व्हाट आई विल डू, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट विल बी बाईलैंग्वेज, ओके। सो इट विल बेनिफिट फॉर देम ऑल्सो एज वेल एज हमारे हिंदी मीडियम के जो हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका गेट 2022 का क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी द मेजर प्रोडक्ट टी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके। सो the reaction condition it is given n-butyl lithium and diethyl ether and in minus 100 degree centigrade, okay. So what will be the product? Let's see the mechanism for first step, like in step A, okay. So I'll just write down the structure for the reaction. देखिए किस तरह से ये रिएक्शन होगी। ये नाइट्रोजन है और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। जो चार हमारे ऑप्शन है उस चार में से हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, है ना। तो पहला स्टेप में हमारा क्या है, एन ब्यूटाइल लिथियम है, माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो दिया हुआ है आपका Ag2O, दिस इज नथिंग बट ए सॉल्वेंट, ओके। वी रिक्वायर्ड सॉल्वेंट टू proceed for the reaction, right? So in this n-butyl lithium is a base, so it will abstract the proton, but here the proton is not there, here bromine is there. So which one it will attract, whether this one or this one, which one it will attract, right? So for that we have to see in the four option you can see, है ना। चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एक जगह यहाँ रिप्लेस है, एक जगह यहाँ रिप्लेस है, एक जगह यहाँ रिप्लेस है, करेक्ट। तो यहाँ वाला तो आप हटा दीजिए, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इट वॉन्ट रिप्लेस योर methoxy, right? So what will happen, see here lone pair are there, right? And one more thing, this lithium is there, it is very much positive, which will liberate this n-butyl, that it will be in negative form like carbanium, it will generate carbanium, है ना। ये क्या करेगा, कार्बोनियन जनरेट करेगा। और वो कार्बोनियन क्या करेगा इस केस में जो है, ये इस तरह से काम होता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तो हम अगर इसको देखेंगे, let's see the mechanism how it will work. So this is bromine, this is bromine, here O, and methyl group I write it down. So these are the lone pair. So this lithium will trap here and then here butyl, correct. So this will be interact like this and like this, okay. So next step what will happen, it will come here, correct, and it will go not like this, okay. I can do that. This will come to the bromine, right. I'll just erase it and I'll form it so it will be clearer, because the arrowhead is very much required for any type of reaction. तो ये क्या होगा, यहाँ जो ये कार्बनियन टाइप का है ये जाएगा इस ब्रोमीन को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी, सी यहाँ पर इसको भी वो ले सकता था लिथियम, बट यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है ना। लिथियम इज ए पॉजिटिव थिंग्स, राइट, and here lone pair is there, so it will attract lithium too, correct. So because of that this bromine will get replaced, not this one, right. So in this case let's see, here lithium will come, okay, and then here our O methoxy is there, correct. Here it will be bromobutane, correct. Now in the next step what is happening, this is step A, right. In the next step just we'll see in B what is it's written, PHCHO, benzaldehyde, right. So how it is, benzaldehyde only, yes, and in minus 78 degrees centigrade. So what will happen here, lithium here in this two bond, here it's carbon, here lithium, so here it will be negative and it will be positive, right. So next step what will happen, this will go and attack here, it will go up, okay, the shifting will take place. And then the next step what will happen, okay, so this will be your not like this, let's see, it should not be carbonyl now because the double bond has already shifted, so it will be O, and then your lithium will be there here,
pH will be there, non hydrogen will be there, right? So they have not mentioned that hydrolysis is there. It already understood that hydrolysis is taking place, because in none of the options it is having this type of thing. So better we will change it to OH, right? So like modify it, हम इसको modify कर देंगे OH में. अब देखेंगे किस प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहा है. यहाँ हमको देने भूलना नहीं चाहिए ये this will be the your final product. Let's see in the four option which one will be your product. Option A, yeah, option A will be your product, right? So option A will be your product. Option A आपका product होगा, correct? So just see the next question. By the time I erase my board, see, this is also a very nice question. You start solving, right? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको स्टार्ट कीजिए आप सॉल्व करने के लिए, है ना. चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग फेज डायग्राम ऑफ ए हाइपोथेटिकल प्योर सब्सटेंस. ओके, आई थिंक you have identified what will be the for what this phase diagram is there, right? It's looking like it's a water phase diagram, right? ये वाटर का फेज डायग्राम है, राइट. देख के ही लग रहा है, क्योंकि जो शिफ्टिंग हो रहा है हमारा, जो प्रेशर के साथ जो हमारा सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो मॉडिफिकेशन, मतलब कि जो लाइन खींच रहा है वो किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना. मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो हम ट्राई करेंगे इसको बोर्ड में ड्रॉ करने का, है ना. उसके बाद फिर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, दिस इज पॉइंट सी, this is solid, this is liquid and this is gas. And in that question it is given कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका ये दिया हुआ है ना. इस फेज डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा है कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, दिस वन इज ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स सी, दिस वन इज प्रेशर ग्राफ, दिस वन इज टेम्परेचर. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, so in this point pressure is constant, but while moving from solid to liquid what is happening, our temperature is getting increased, right? so एक constant pressure में जब हम लोग temperature पे increase करते हैं इस phase diagram में, तो हम solid से liquid की ओर जा रहे हैं ना. अब दूसरे point की ओर हम लोग देखते हैं, the second point, let's see, one point is here and coming towards downwards, है ना. अब क्या हो रहा है इस point में, जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब pressure is getting decreased, right? The pressure is getting decreased. In that same time what is happening, this melting point, okay, these are the melting point. If this temperature if you see, इस प्रेशर में ये जो टेम्परेचर है इस पार्टिकुलर मटेरियल का, जो प्योर सब्सटेंस हम कह रहे हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, करेक्ट. प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना. प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है ना. तो इस जगह में आप क्या देख रहे हैं, इससे एक कंफ्यूजन निकलता है कि जो सॉलिड का हमारा मोलार क्या कहते हैं वॉल्यूम होगा, ओके, द मोलार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मोलार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, what will happen, it will be greater than the molar volume of liquid, correct. Molar volume of solid will be greater than the molar volume of liquid. The solid size will be greater. Okay, solid का जो size है वो ज़्यादा बड़ा होगा compared to liquid के size से. Suppose अगर एक molar solid ले लिया आपने, इसी same compound का, compound X का एक molar solid ले लिया और उसी को जब liquid form में लिया एक molar, तो liquid का जो आप देखेंगे volume वो कम रहेगा compared to solid का, ठीक है. तो solid का volume हमारा बढ़ जाता है यहाँ पे, है ना. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ये लाइन को यहाँ से खींचेंगे, सपोज दिस इज द लाइन, ओके, सो इन दैट हाई प्रेशर एंड द पार्टिकुलर टेम्परेचर T1, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज इन लिक्विड स्टेट. जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ओके, जैसे जैसे आ रहे हैं, दिस पॉइंट यू सी द प्रेशर हैज डिक्रीज फ्रॉम दिस P1 टू P2, करेक्ट. प्रेशर हैज डिक्रीज बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो जैसे जैसे प्रेशर घटा हमारा, हम मेल्टिंग पॉइंट तक रीच हुए, और फिर जैसे जैसे प्रेशर घटा हम सॉलिड में गए, फिर प्रेशर घटने लगा हम गैसेस में चले गए, है ना. तो ये होता क्या है, जब हमारा ये हाई प्रेशर और इस पार्टिकुलर टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में रहा,
the further decreasing of pressure, what is happening? It is coming to the melting point range. Melting point range means we can say it is in solid state. Further decreasing pressure, it is reaching to the gaseous phase, right? In the same temperature, correct? This point we call it T, triplet point, right? Here the equilibrium will be there in this particular temperature and pressure. The equilibrium will be there. All the three will be in equilibrium, like liquid, solid, and gas phase, right? So now we will go to the our option. First option is the molar volume of solid X is less than the molar volume of liquid. So this one is wrong, right? Because here we see the molar volume of solid greater होता है हमारा molar volume of liquid. Molar volume of solid जो हमारा वो साइज उसका ज्यादा हो जाता है लिक्विड से, है ना? लेकिन आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि सॉलिड का साइज वो कम कर रहा है ना? ऑप्शन बी में देखते हैं, X doesn't have a normal boiling point, करेक्ट, राइट? जो X है हमारा उसका एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस बन रहा है ना, तो ये गैस बनने के लिए हमको एक कोई बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ रही है ना? तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है कि एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रेंज इसका नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, है ना? मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट है एक्स का वो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। देखिए जैसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट मतलब इस सॉलिड फेज में ले लेते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर में है, just we are increasing the pressure at constant temperature, we are increasing the pressure and now we reach that melting point range, right? That means when pressure is increasing at constant temperature, we are reaching to the melting point, right? The melting point X decreases with increase in pressure. So we can say it as like the pressure we are increasing, the melting point temperature is decreasing, like melting point is decreasing. So this one is also correct, option C, right? Coming to the option D, on increasing the pressure of the gas isothermally, it is impossible to reach solid phase before reaching liquid phase. It is also wrong. Okay, see, if we are increasing pressure, okay, it is nothing like that. We have to reach first liquid and then we will go to the solid, right? If suppose we are increasing pressure after gas, see this till now it is gas. जैसे अभी तक ये गैस है, जैसे देखिए बैरियर पार किए हम लोग सॉलिड में घुस गए, कहीं भी लिक्विड को टच किए नहीं किए लिक्विड को, है ना? तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका मतलब जो आपका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है? इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं और तब तक आप क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना? मैं बोर्ड मिटा लेता हूँ। ओके, मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, है ना? तो हम इसका क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को बना लेते हैं एक बार, है ना? ऐसे बार बार रिएक्शन को बनाने के क्रम में इसका स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, है ना? क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर को लेके बनाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सी, ओके, जस्ट विल ड्रॉ द मॉलिक्यूल एंड देन विल स्टार्ट आवर मैकेनिज्म। This one, in the first step LDA and minus 78 degrees centigrade, correct? So what will happen? Bromine, right? So here the lithium, what ये LDA क्या करेगा हमारा, ये बेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक प्रोटॉन को, जो एक्टिव प्रोटॉन है ना, एक्टिव मिथिलीन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। This LDA will extract proton from the active methylene group. This one is the active methylene, okay? Both hydrogen is active methylene because here the carbonyl group is there. It will pull the electron density from this carbon and then it will be ये अपने आप को अनस्टेबिलिटी फील करेगा। उस केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल के उसको स्टेबिलिटी देगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन, दिस एलडीए विल टेक दिस प्रोटॉन इन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स सी, these two are methyl group. Here it will be negative charge and this one, so okay, and the next step what will happen, we have this compound, okay, so what will happen, see, this negative will go here, this will go this side and then this is the leaving group, right? It will come out. So in the next step
ओके ओके एंड देन okay, it will attack from back side because front side this bulky group is there, so it will be okay. And then okay, 1 2 3, so 1 2 and then 3, 1 2 3 4 5 6 6. Okay, so anything is missing? 1 2 3 or 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4. There are 4, right? This molecule is wrong, we have drawn. Let's see. Okay, one more carbon will be there. हम एक कार्बन को भूल गए थे यहाँ पे, उस कार्बन को ऐड कर देता हूँ मैं. ये ब्रोमीन, इस जगह में भी वही होगा, है ना. तो फिर ये शिफ्टिंग नहीं होगा, है ना. ये सीधे क्या करेगा, यहाँ जाएगा, इसको भगाएगा, यहाँ पर बॉन्ड है. और इस केस में क्या होगा हमारा, ऐसे, है ना. तो इस तरह से हो जाएगा. अब दिस इज स्टेप 1, राइट. सो स्टेप 1 में कौन कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है, ए और बी. आपको ये दोनों ऑप्शन में जो है फर्स्ट पार्ट जो पी के लिए है, पी के लिए ए और बी ये दोनों ही बनेगा, है ना. तो ये दोनों बन गया. अब हमको देखना होगा कि क्यू में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना. विच प्रोडक्ट विल बी क्यू. सो हियर दे हैव गिवन ग्रब्स कैटलिस्ट. ओके, ग्रब्स 2 सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट. तो ग्रब्स सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट क्या है आपका, रुदेनियम के साथ होता है. क्या रहता है यहाँ पर, CY3, है ना. फॉस्फोरस पे साइक्लिक 3 रहता है. और फिर उसके बाद क्या रहता है, डबल बॉन्ड. यहाँ पर आपका फिनाइल रिंग रहता है, बेंजीन रिंग रहता है. यहाँ पे रहता है आपका एक क्लोरीन और एक और क्लोरीन रहता है. और यहाँ पर आपका क्या रहता है, आप कीजिए या राउंड कीजिए, उससे नहीं होता है. यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे, और फिर यहाँ पे, है ना, ये. और फिर इधर भी जो है आपका ये रहता है. ठीक है, ये सेकंड जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट है. फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट क्या है आपका, ये ग्रुप हट करके यहाँ पर भी PCY3 आ जाएगा, करेक्ट. वो आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया. ये आपका सेकंड जनरेशन हो गया. अब इसका काम क्या है, ये मेटाथेसिस करेगा, है ना. तो ये डबल बॉन्ड है, तो किस तरह काम करेगा देखिए. ये हम जस्ट ये वाला पार्ट लेकर के हम काम करते हैं, है ना. इस पूरे को अभी फिलहाल जो है हम लोग क्या मान के चलते हैं, R मान के चलते हैं, है ना. तो ऐसा है, ये ऐसे और फिर ऐसे, है ना. ऐसे है, ऐसे, और ये यहाँ से R मान के चलते हैं. बाद में ऐड कर देंगे ना. तो 1 2 3 4 5 6 7. अब ये मेटल का काम क्या है, इसको हम लोग मेटल और ये बाकी को लिगैंड मान लेते हैं और ये डबल बॉन्ड रहने देते हैं ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से है मेटल, ठीक है. ऐसे है PH और यहाँ पर H है, और इधर में हम लोग कर देते हैं लिगैंड, है ना. तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये दोनों रिएक्शन करके ये बना देता है ना. ऐसे नहीं करता है. यहाँ पर आएगा मेटल और ऐसे, है ना. मेटल का जो है एक फिनाइल है, एक हाइड्रोजन है. इसका दोनों ही हाइड्रोजन, इसको समझिएगा अच्छे से, है ना. ये बहुत अच्छा है reaction. It's very nice reaction. Let's see how it's happening. So now the next step, what will happen, this will break and this will go here, right. The next step, what will happen, this will be go out like this, PH H, and this side both hydrogen, this will go out, right. And in this molecule how this will be R. In this molecule how it will be represented, ऐसे, और फिर यहाँ पर M, ये है ना, ऐसे. अब these two are now participated in metathesis. This one is R. So in this step what will happen, ऐसे, okay, we'll number it 1 2 3 4 5 6. So ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना. यहाँ से जुड़ा,
ये 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट करेगा, लाइक द फर्स्ट स्टेप इट विल अगेन रोटेट, राइट। फाइनली दिस सेकंड we have this R, so let it be R. So now 1 2 3 4 5 membered ring, okay, 5 membered ring, and in the second position this R group is there. Okay, this will take it here. Just I'll rub it from the board. So this product I'll write it, I'll just explain this R, okay. ये R को मैं explain कर देता हूँ, मॉलिक्यूल को ही ले लेता हूँ, एग्जैक्ट मॉलिक्यूल को, and ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये okay, this one, and then O, then here the R has started from here, so this entire product is R. So what will happen here, just we will do it like this, okay. This is the second one, right, the second one, this is first one, this is first one, right. So first here it will be double bond, 1 and 5th, 4 5. So first this is 5th one, and third 4th 5th, this one is 5th. So first and 5th one double bond will be there, and this, just see the stoichiometry in the option, like for product P it should be in dash base. So what is happening, this one will be dash base. So in the next step we have lithium borohydrate, ओके, LiBH4 हम लोगों के पास है। तो अब LiBH4 क्या करेगा हमारा, ये इस ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, ओके, जस्ट ये फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ओके, इट विल कन्वर्ट इट टू अल्कोहल. सो वी हैव वन 5 membered ring, double bond, so we'll put this double bond here and then OH. This will be your product, right? So which one is matching? P already we got it, and for Q this should be, stoichiometry should be inside the board, right? बोर्ड के अंदर साइड में होना चाहिए, इस तरह का होगा. तो हमारा Q जो है वो ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना. अगर कहीं भी डाउट हो रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके ओके, विद अ डिफरेंट एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय द टाइम आई विल रब द बोर्ड. ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको. ओके, इसमें क्या करता है ये, हम इसको लिखते हैं बोर्ड में. ओके, ये आपका एक कंपाउंड है, इसमें यहाँ लिखता हूँ क्योंकि सब प्रोडक्ट हमको बनाना पड़ेगा इसमें, ऐसे है ना. द प्रोसेस, द रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन. ओके, तो डीकार्बोक्सिलेशन इज टेकिंग प्लेस. सो द कंपाउंड इज कार्बोनिल एंड देन CH3. वी हैव वन रेडियोएक्टिव लाइक आइसोटोपिक carbon, and remaining is carbonyl, right? So it's a octahedral complex. Now what is happening? Decarboxylation, correct? Decarboxylation is taking place. So how many product will form? We'll see. Let's see how many product will form. So what we'll draw it, 4 different kind of product I'll draw it. So I'll just make the framework, so it will help me out to form the product. And the same thing you also do it. You won't feel any, you won't get any confusion, right? आपको कोई confusion create नहीं होगा अगर इस तरह से आप बना लेंगे, है ना. रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल. अब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा हमारा, ये इस केस में क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन in the first step what will happen, this will go out and this will move here, right? ये माइग्रेशन होगा पहला में. तो पहला में जैसे ही माइग्रेशन हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोनिल ग्रुप माइग्रेट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा. ओके, इट विल, द लिविंग ग्रुप विल बी द कार्बोनिल, राइट, बिकॉज डीकार्बोक्सिलेशन इज टेकिंग प्लेस. सो दिस कार्बोनिल विल बी हियर, देयर इज नो चेंजेस. इन दिस प्लेस मिथाइल ग्रुप विल कम. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मिथाइल ग्रुप. बाकी सब सेम रहेगा, है ना, जैसे है कार्बोनिल जैसे है वैसे ही रहेगा, बाकी सब एक हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं.
यहाँ पर इसको मिटाते चलेंगे क्योंकि है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, this carbon will go, okay, this is going out and this methyl is shifting in. So what will happen? Oh, we can try it, right? So this carbonyl is there, this isotopic carbon is also present, this carbon here also carbonyl, here it will be CH3 now, correct? नेक्स्ट स्टेप आई सी, है ना क्या हो रहा है, अब कहां से ये करेगा, ओनली सिस, है ना, जो सिस है वहीं पे माइग्रेशन होगा, है ना, ट्रांस में माइग्रेशन नहीं करेगा। इसके लिए ट्रांस कौन सा है, ये वाला कार्बोनिल है, तो ये माइग्रेशन नहीं करेगा कभी भी, है ना। दिस कार्बोनिल वोंट माइग्रेट बिकॉज इट इज इन ट्रांस पोजिशन, सो दिस वोंट गो टू द ट्रांस साइड, राइट, इट विल गो ओनली टू द सिस पोजिशन बिकॉज दिस इज एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड है, तो इसके लिए सिस कौन सा है, ए भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चार सिर्फ सिस है इसके लिए, ये नहीं है इसके लिए सिस, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे कि दिस वन इज ट्रांस, इट वोंट माइग्रेट हियर, it will migrate only these four places because this is axial and these are equatorial. Now the third one will take place, this carbon will go out, this methyl will shift here. So what is happening in third place, let's see, carbonyl, this is isotopic, carbonyl, 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 here it will be CH3, right? Now in the last step we'll see what is happening, okay, as we discussed, this won't be go out, only this one is remains, right? So this will go out and this will come here. So the last and final one is carbonyl, this is isotopic carbonyl, here it will be CH3, carbonyl, 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 right? So now see the ratio we have to see, right, what is the ratio. So here you see this one is non-labeled, okay, and L non-labeled, how much, so 4 out of 4, this is 25%, non-labeled one is 25%. Now see, this is labeled one, wherever the 90-degree bond angle will be there, that we call it cis. जहां भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है क्योंकि दोनों ही एक्सियल में, तो ये सिस हो गया, ठीक है। अब चले जाते हैं, दिस इज सिस, हाउ मच, 25% सिस, सिस कैसा सिस, to the carbonyl, labeled carbonyl, this one is cis, right, in this place, see this one is here and this one is here, so it is trans, right, 25% trans. With respect to carbonyl, labeled carbonyl, this is trans, right, because these two, the bond angle is 180, so wherever 180 degree bond angle, we call it trans. Come to this place, this is the labeled one and this is CH3, again 90 degree bond angle, right, so this one is also cis, so 25% cis. So overall see, cis is 50%, trans is 25% and non-labeled is 25%. So 3 ratio should be there. So which option is correct? Option C. See, 25%, 25% and 50%. So first 25% is your trans. First 25% is non-labeled. Yeah. Option C, you see, first 25% is non-labeled. This one, correct? And the second one, second 25% is trans to the labeled carbonyl. I mean, we will see this one. Okay. And the third 50% your cis, that is cis product, right? With respect to carbonyl, it is cis. So ये cis है आपका, देखिए कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपका क्या है, सिस पोजीशन में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं ना, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो अभी गेट का भी ये खत्म हो गया, ये सीरीज 5 चल रहा है, ओके। कल आपका आएगा CSIR के लिए, तो उसके लिए भी आप देखेंगे, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।